Hi student, today we will start a new chapter of R.S. Agrawal book, class 8, area of trapezium and polygon. Firstly, we have to know that what is the trapezium. Trapezium means a type of parallelogram whose one pair are parallel and rest are non-parallel. These two lines are parallel. As you can see, this is a parallelogram. This is a type of parallelogram whose name is trapezium. This is also a trapezium in which only two pairs become parallel. That is known as the trapezium. Now we will solve next question, exercise 18a. Exercise 18a. And our first question is given, direct question is given, but before of it we have to understand some formulas, how we will get the area of this figure. So for getting the area of trapezium, the formula says that area of trapezium is equal to 1 upon 2 multiplied with sum of parallel sides. As you can understand, these two are the parallel sides multiplied with height. Height denotes that a perpendicular line will draw on this like this. It is a perpendicular line drawn on this. This is known as height. This is height. This is dependent on the 90 degree. Now, just after it, we will start the solution of the questions. Now, first, in this question, it is telling that a trapezium is given whose parallel sides are 20 centimeter and 24 centimeter, and the distance between them means the perpendicular distance between them, that is 15 centimeter, and it is asking the area of this trapezium. So according to the formula, area of trapezium says that 1 upon 2 multiplied with sum of parallel sides multiplied with height. So 1 upon 2 sum of parallel side. Here parallel sides are given 20 centimeter and 24 centimeter. So 20 centimeter plus 24 centimeter multiplied with height is given 15 centimeter. So multiply it 1 upon 2. The addition of 20 and 24, it became 44 centimeter multiplied with 15 centimeter. So as you know that 44, 22 divided by 2, it became 22. So 15 multiplied with 22, it became 330 centimeter square. ये याद रखना है हमें कि कभी भी एरिया निकलेगा तो वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में होगा. जैसे मीटर अगर दिया है तो मीटर स्क्वायर में होगा, अगर किलोमीटर दिया है तो किलोमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर दिया सेंटीमीटर स्क्वायर होगा. ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. ठीक है, ऐसा लिखना है. ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम इज इक्वल टू 1 upon 2 multiplied with sum of parallel side multiplied with height. So 1 upon 2 multiplied with parallel sides are given 20 and 24. So 20 plus 24 multiplied with 15. So addition of 20 and 24 became 44. It has been divided by 2. It became 22 centimeter and it became multiplied with 15 and it became 330 centimeter cube. As the same, second question is just same, only the decimal value is given. So you have to try to do own self, and we are going to solve on the third. In question number third, it has given a figure in which the tabletop is in the form of trapezium. It has given trapezium whose parallel sides are given 1 meter and 1.4 meter, and the distance between them, it has given 0.9 meter. Find the area. It's a very easy question. Again repeat, we have to write area of trapezium is equal to 1 upon 2 multiplied with sum of parallel sides multiplied with height. So 1 upon 2 multiplied with, here parallel sides are 1 meter and 1.4 meter. So 1 plus 1.4 meter multiplied with height is given 0.9 meter.
We have to always be careful about the units. So 1 upon 2 and the addition of 1 and 1.4, it became 2.4 meter multiplied with 0.9 meter. So 2 divides 2.4, it is very easy. 2 divided 2.4, it became 1.2 meter. So 1.2 meter will multiply with 0.9 meter. It became 12 9 is 108. So 108, and the decimal for one digit and one digit. So it became just after the two digit from right side. Two digits from right side. So it became 1.08 मीटर स्क्वायर. ये हमारा एरिया निकल गया है स्टेबल टॉप का. अब जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question, question number 5, in which the area is given and the height is asking. It is demanding for the distance between the parallel side is given 26 meter, and it is asking for the another parallel side. Only one parallel side is given, and we have to find the another parallel side of it. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ट्रापीजियम है जिसका एरिया जो है वो दिया हुआ है 1586 मीटर स्क्वायर, और कह रहा है कि उनके पैरेलल साइड्स, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ट्रापीजियम क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम हुज वन पेयर बिकम्स पैरेलल. ठीक है, तो उनके पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो 26 मीटर दे रहा है, और कह रहा है कि वन पैरेलल साइड इज गिवन 84 मीटर. फाइंड आउट द सेकंड वन. हमको अब सेकंड वन को फाइंड आउट करना है. तो यहां देखते हैं, फार्मूला हमें पता होगा, एरिया ऑफ ट्रापीजियम इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड विद सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड विद हाइट. हमको दूसरी पैरेलल साइड्स निकालनी है, तो हमें कुछ एज्यूम करना होगा. ठीक है, तो फर्स्टली वी विल एज्यूम लेट द सेकंड पैरेलल साइड बी x. मान लेते हैं कि ये x हो गया. ठीक है, तो अब क्या है, एरिया ऑफ ट्रापीजियम अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रापीजियम कितना दिया है 1586 मीटर स्क्वायर, और ये फार्मूला है 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. अब पैरेलल साइड क्या है, एक x हो गया और एक 84 मीटर का दिया हुआ है. इट इज गिवन x प्लस 84 मीटर एंड मल्टीप्लाइड विद हाइट. हाइट इज गिवन 26 meter, means the distance between the parallel line is given 26 meter. Now it is easy to solve. 2 13 जा, ठीक है, 2 से 26 डिविजिबल है, तो हम आराम से 13 टाइम डिवाइड कर देंगे. Now here as you can see 13 is multiplying with x plus 84. Now wherever 13 will transfer another side, it means it will do a work of division. So x plus 84 meter is equal to 1586 meter square divided by 13 meter. Now whenever we will divide it, 1586 by 13, it becomes 122, and meter divided meter square, it became meter. So x plus 84 meter is equal to 122 meter. Now x is equal to 122 meter minus, now here 84 is adding with x, so whenever it will transfer another side, it will just do opposite work, means subtraction. So 84 is subtracting here 84 meter. So x is equal to 12 minus 4 8, 11 minus 8 3, it became 38 meter. Now x की वैल्यू हमको मिल गई 38 meter. Now you can take a screenshot of it. Now question number 6. Question number 6 is given that it is a parallelogram, it is a trapezium whose area is given 405 centimeter square, and the ratio of the parallel sides are given 4:5, and the distance between them is given 18 centimeter. Now it is telling find out the actual value of the sides. What is the measurement of the sides? Now ये क्लियर दिया हुआ है कि यहाँ पर 4:5 में इसकी पैरेलल साइड्स हैं,
तो मैंने पहले भी बताया हुआ है, पहले की वीडियोस में आप देख सकते हैं कि कभी भी रेशियो जो होगा वो कंप्लीट नहीं होगा, रेशियो कांट बी कंप्लीट. सो रेशियो कैन रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर नंबर. द रेशियो means comparison of that number can be represented in form of the ratio. So हम क्या करेंगे, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा कॉमन पोर्शन जरूर रहा होगा जो डिवाइड हो गया होगा, जो कट गया होगा, अलग हो गया होगा, तो ये हमको शॉर्टेस्ट फॉर्म मिलेगी. तो हम क्या करते हैं कि लेट द कॉमन पोर्शन भी x. मान लेते हैं कि इसका कॉमन पोर्शन x है. तो अब एक नया रेशियो बनेगा. सो न्यू रेशियो बिकम्स 4x रेशियो 5x. यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो साइड है वो 4x है और ये जो साइड है वो 5x है. इनके बीच के डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर. ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में ही है, ये नहीं कि ये बदल जाएगी इसकी यूनिट. ठीक है, तो अब फार्मूले में अब रखते हैं. तो फार्मूला है हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड विद सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड विद हाइट. तो यहां हो जाएगा ट्रेपेजियम का एरिया दिया हुआ 405 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाइड विद सम ऑफ पैरेलल साइड यानी 4x प्लस 5x मल्टीप्लाइड विद 18 सेंटीमीटर. अब यहां देख सकते हैं हम कि 2 से 18 डिविजिबल है. सो 2 9 जा 18. सो नाउ हियर 405 सेंटीमीटर स्क्वायर is equal to 4 and 5 became 9x. Because both are like terms, so they can be added. So it became 9x multiplied with 9 centimeter. Now both 9 are multiplying with x. So both whenever it will transfer, it will do a work of the division. So 405 centimeter square is equal to x here upon 9 into 9. तो ये हमको पता है कि 9 से 405 डिविजिबल हो जाएगा. सो 9 4 जा 36, 4 रिमेन, 9 5 जा 45. सो अगेन 9 5 जा 45. नाउ व्हाटएवर वैल्यू वी हैव गॉट फॉर द x, दैट इज 5. x is equal to 5 centimeter. Now we have to find the area, sides. So the first parallel side is given 4x. So 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 multiplied with 5 यानी कि 20 सेंटीमीटर हो गया. अब 5x देख लेते हैं, यानी 5x यानी 5 into 5 यानी ये हो गया 25 सेंटीमीटर. यानी 5x के लिए हो गया 25 सेंटीमीटर और 4x के लिए हो गया 20 सेंटीमीटर. ये इसकी साइड्स हमें आसानी से मिल गई. You can take a screenshot of it. Now in question number 7, it has given area of a trapezium is given 180 centimeter square and the distance between the parallel lines is given 9 centimeter and the about given the parallel sides, it is telling that one parallel side is 6 centimeter longer than other parallel side. Now 6 centimeter longer than other parallel side. तो किसी को भी जब तक हम इसमें बेस नहीं फाइंड आउट करेंगे किसको बेस बना के दूसरे वाले को रखना है. तो ये कह रहा है कि पहली एक साइड जो है दूसरे वाले से 6 सेंटीमीटर अधिक है. यानी कि अगर सिंपल है कि अगर पहली वाली पता होगी तो हम उसमें 6 सेंटीमीटर ऐड करके हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हमें क्या करना है, पहली वाली साइड को हमें एज्यूम करना है. तो ये करेंगे हम, लेट द फर्स्ट साइड बी x. अगर पहली साइड x मान ली गई, देन सेकेंड साइड बिकम्स x प्लस 6. यानी कि अगर ये x है तो ये x प्लस 6 हो जाएगा. ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है इनकी एक्चुअल लेंथ को. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे क्योंकि एरिया दे दिया है हमको. अगर एरिया दिया है तो एरिया के ही पैटर्न पे हमको सॉल्व करना होगा कोई क्वेश्चन.
1/2 multiplied with sum of parallel sides multiplied with height. ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारा दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हो गया 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि फर्स्ट वाले को हमने माना x, दूसरे वाले को x प्लस 6, और ये हाइट दे रहा है 9 सेंटीमीटर। अब सिंपल सी बात है कि 2 से 9 तो कटेगा नहीं, तो ऐसे ही हम इसको रहने देते हैं। लेकिन यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके डिवाइड करेगा, यहाँ 2 डिवाइड कर रहा है तो उधर जा करके मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 180 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 2 डिवाइडेड बाई 9 सेंटीमीटर, और यहाँ हो जाएगा x और x लाइक टर्म है तो वो ऐड हो जाएंगे। ये हो गया 2x प्लस 6। ठीक है, अब देखते हैं 9 2 जा हो गया 20 टाइम्स कटा, तो ये आ गया 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। अब देखें 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2x प्लस 6, तो 6 क्या कर रहा है, यहाँ ऐड कर रहा है, 6 अब उधर जाएगा अकेले। 40 माइनस 6 इज इक्वल टू 2x। अब 40 में से अगर 6 को माइनस कर दिया जाए तो आ जाएगा कितना हमारा 34। ये आ गया 34 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा नीचे हो जाएगा ये। ठीक है, तो 2x की वैल्यू आ रही है 34, यानी कि 2x इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू कितनी होगी, x से 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाकर के ये डिवाइड करेगा, यानी 34 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से अगर 34 को हम डिवाइड करते हैं तो आएगा हमारा 17 सेंटीमीटर। 17 सेंटीमीटर, ये तो हमारे फर्स्ट वाले की वैल्यू आ गई, यानी x की वैल्यू आ गई 17 सेंटीमीटर। अब कर रहे हैं सेकंड वाले की भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड वाला है x प्लस 6, यानी कि 17 प्लस 6, तो ये आ गया 23 सेंटीमीटर, यानी कि ये टोटल हो गया, दोनों साइड की हमको वैल्यू मिल गई, फर्स्ट वाले की 17 हो गई, सेकंड वाले की 23 हो गई। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, जैसे चाहे वैसे कॉपी कर सकते हैं आप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व, इन विच area of trapezium is given 9450 meter square and the distance between the parallel sides, this sign is for the parallel side, parallel lines, is 84 meter, and now it is telling that its sides are dependent on each other, means one side is double of the another side. So we are making the diagram, it will easier for you to understand. As example, we have assumed this is x, then the second will be the 2x, and the distance between them is 84 meter. Now we have to find the value of the x and 2x. हमें इस साइड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, यानी फर्स्ट वाली साइड को एज्यूम करेंगे तभी सेकंड वाली साइड हमारी आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट साइड यहां देखते हैं, ये हो जाएगा let the first side be x। अगर फर्स्ट साइड x है, ठीक है, तो सेकंड साइड क्या होगी, सेकंड साइड इज इक्वल टू 2x, क्योंकि डबल है, उसकी डबल है। तो अब मैंने क्या कहा था कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगर दिया है तो इसी के फार्मूले पे हम अप्लाई करेंगे। अब सबको याद होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला सबसे इजी था, यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ है 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड विथ हाइट। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ है 9450 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड विथ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड मैंने एक x ली है, 2x ली है, ये हो जाएगा x प्लस 2x मल्टीप्लाइड। अब इसकी हाइट, यानी ये ले लिया हमने 84 मीटर को, तो 84 मीटर है, तो यहाँ ये हमको पता है कि 2 से डिविजिबल है, तो 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया हमारा 42 मीटर। अब इन दोनों को एडिशन करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 9450 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस 40, सॉरी
नॉट प्लस, इट इज मल्टीप्लाइंग 42 मीटर। तो यहां देखें x से दोनों मल्टीप्लाई कर रहा है, 42 भी कर रहा है और 3 भी कर रहा है। तो ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे साइड, यानी ये आ गया 9450 मीटर स्क्वायर अपॉन 3 मल्टीप्लाइड विद 42 इज इक्वल टू x। ठीक है, यहां हमें x की वैल्यू मिलेगी। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड 0, 3150 आया इसका। अब 42, ये देख रहे हैं 7 से डिविजिबल है, 7 से दोनों नंबर डिविजिबल है, 7 6 जा 42 और ये 7 4 जा 28, 3 रिमेन, 7 5 जा 35 एंड 0। अब 6 से ये डिविजिबल है, 6 7 जा 42, 3 बचा, 6 5 जा 30, यानी x की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गई 75 मीटर की। ठीक है, जब x हमें फाइंड आउट हो गया तो ये तो हमारे लिए इजी हो गया कि x इज इक्वल टू 75 मीटर, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाइड विद 75 मीटर, यानी कि 150 मीटर। यानी 2x की वैल्यू हो गई हमारी 150 मीटर और x की वैल्यू हो गई हमारी 75 मीटर। ये हमारा आंसर हमें मिल गया। अब इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, जैसे करना है कर लो। Now we are going to solve the question number 9. In this question it has given perimeter of a trapezium ABCD। ये जो मैंने फिगर बनाया है ABCD का जो पेरीमीटर निकला है वो 130 मीटर का निकाला गया है। अब जब पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब सारी साइड्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा पेरीमीटर हमको फाइंड आउट हो जाएगा। यह है ABCD। इसमें क्या है, AD की वैल्यू दी हुई है, AD 42 मीटर की, DC की वैल्यू दी हुई है 19 मीटर की, BC की वैल्यू दी हुई है 54 मीटर की। अब यहां हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, क्योंकि ये जो है ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर है यानी ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, तो हमें पैरेलल लाइंस की तो वैल्यू मिल गई। अब अगर हमको इस परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल जाए तो हम आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। तो हम, अब ये आसान काम है हमारे लिए, पेरीमीटर भाई दिया हुआ है, सम ऑफ ऑल 4 साइड्स इज गिवन 130 मीटर एंड 3 साइड्स आर गिवन, 3 साइड दी हुई है इसकी, हमको चौथी साइड फाइंड आउट करनी है। तो बहुत इजी है, क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम 130 माइनस AD प्लस DC प्लस BC इज इक्वल टू AB। आसान हो गया। अब क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, अब ट्रेपेजियम कैसे पेरीमीटर निकालेंगे, AB प्लस AD प्लस BC प्लस DC। ठीक है, मतलब चारों साइड्स को ऐड कर दिया, यहां आ गया 130 मीटर का, इज इक्वल टू AB की वैल्यू हमको नहीं पता है, AB प्लस AD की वैल्यू है 42 प्लस ये BC की वैल्यू है 54 और ये है 19 और ये तीनों हो जाएगा मीटर में। ठीक है, अब इनका सम करते हैं, 130 मीटर इज इक्वल टू AB प्लस 115 मीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 130 मीटर माइनस 115, ट्रांसफर कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा AB की वैल्यू। अब यहाँ AB की वैल्यू आ गई 15 मीटर, यानी इसकी वैल्यू आ गई 15 मीटर। ठीक है, अब देखो ये जब मिल गया, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, यानी AD 42 और BC 54 और AB हमको जो कि परपेंडिकुलर लाइन थी वो मिल गई 15 की। तो अब इजी है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला रख के निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये तो अब तक याद हो गया होगा, इतने क्वेश्चन हम लोग लगा लिए। 1/2 मल्टीप्लाइंग विद सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड विद हाइट। ठीक है, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इसकी हो जाएगी 42 एंड 54, 42 एंड 54 मल्टीप्लाइड विद 15। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4 to 6 4 5 9 96 हो गया और यहाँ पे 15। अब इसे 2 से 96 को डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 48 मल्टीप्लाइड विद 15, 48 मल्टीप्लाइड विद 15। अब मल्टीप्लाई कर दो, 15 8 जा 120, ये हो गया 120, तो 0 12 आ गया, 15 4 जा 60,
60 प्लस 12 ये हो गया 72, यानी कि 720 मीटर स्क्वायर इसका एरिया फाइंड आउट हो गया। इजी था ना? अब चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, समझ लो, जैसे चाहो वैसे कर लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इन क्वेश्चन नंबर 10 इट हैज गिवन ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ये तो दिया नहीं है कहीं, तो अब क्या दिया हुआ है? हियर गिवन एंगल ABC इज गिवन 90 डिग्री, ठीक है, यानी ये परपेंडिकुलर लाइन है। तो भाई सीधी है तो फिर बाकी ऐसे तो रेडियो नहीं हो जाएगी वो, तो वो तो 100% यहाँ भी 90 होगी, ऊपर की साइड भी A पे भी। अब कह रहा है कि AD एंड BC आर पैरेलल, AD और BC आपस में पैरेलल है, तो मैंने प्रूव कर दिया था पहले ही, ठीक है। AD और BC पैरेलल है, जहां AD दिया है 16 सेंटीमीटर का, BC दिया है 40 सेंटीमीटर, और इसका एक डायगोनल है AC, ठीक है, डायगोनल है AC, इसकी वैल्यू दी है 41 सेंटीमीटर। अगर ये देखो कि हमको पैरेलल साइड तो दी हुई है, हमको क्या निकालना है? उसका परपेंडिकुलर निकालना है। तो अब अगर फिगर ध्यान से देखते हैं तो अब फिगर ABC पे आते हो, ये छोड़ दो, ये लाइन को हटा, ये आ गया तुम्हारा ABC। ABC अब क्या लग रहा है? क्या है? 90 डिग्री है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो ये इसका हाइपोटेनस होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने जो भी लाइन आती है वो हाइपोटेनस होती है, जो कि 41 मीटर दी हुई है, ठीक है। बेस दिया हुआ है 40 मीटर का। अब हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, ये हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है क्लास 7th में, हमने पढ़ा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखो बेस तो यहाँ पे 40 मीटर दे दिया हमें, सॉरी सेंटीमीटर है, ये सब सेंटीमीटर में है, और इसका हाइपोटेनस है 41 सेंटीमीटर, और हमको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। अगर परपेंडिकुलर फाइंड आउट हो गया यानी उसका डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन फाइंड आउट हो जाएगा। चलो कर लेते हैं। ये 41 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कर दो यहाँ पे, h स्क्वायर की जगह, बेस की जगह परपेंडिकुलर तो वैसे ही रहेगा क्योंकि परपेंडिकुलर निकालना है। अब बेस का स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर, सॉरी नॉट 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी हो गया 41 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखो ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे हम करते थे? a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। देखो दो मेथड है, पहला है कि इसको हम इसका पर्टिकुलर स्क्वायर करके हम निकालें। अब स्क्वायर करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा ना, तो उसको आसान कर लेते हैं हम, यानी कि p इज इक्वल टू p स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 41 प्लस 40, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा मल्टीप्लाई लग जाएगा 41 माइनस 40। अब ठीक है, ऐड कर दिए तो 81 हो गया, माइनस कर दिए तो 1 आ गया, यानी p स्क्वायर इज इक्वल टू 81, क्योंकि 1 में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, बात तो वही है। अब क्या है, स्क्वायर जब दूसरे साइड जाता है तो रूट में कन्वर्ट होता है, यानी p इज इक्वल टू रूट 81। अब हम लोगों ने एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़ा होगा कि 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है, यानी इसका आंसर आ गया 9 सेंटीमीटर। अब हमको ये डिस्टेंस भी मिल गई 9 सेंटीमीटर की। अब तो हम एरिया आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि अब तो सब कुछ मिल गया, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड मिल गया, ये दोनों पैरेलल साइड्स हमें मिल गई। तो अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ पैरेलल साइड्स, एरिया ऑफ पैरेलल साइड्स इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड विथ सम ऑफ, सॉरी गलत मैंने लिख दिया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होना चाहिए था, क्योंकि पैरेलल साइड का तो कोई एरिया ही नहीं निकल सकता ना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड विथ हाइट, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है तो 1/2 मल्टीप्लाइड विथ सम ऑफ पैरेलल साइड इज 16 प्लस 40 मल्टीप्लाइड विथ 9। अब देखो 9 सेंटीमीटर तो डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन इनका एडिशन जरूर डिवाइड हो सकता है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 मल्टीप्लाइड विथ 56 मल्टीप्लाइड विथ 9 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इस स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि 2 बार हमको सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि हम स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं उसको, यानी 2 से 56 को डिवाइड कर दिया, यह आ गया 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 28 आ गया। 28 मल्टीप्लाइड विथ 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 8 जा 72, 7 हो गया। 9 2 जा 18, 18 और 7 ऐड कर दो 25 हो गया, यानी 252 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा एरिया फाइंड आउट हो गया है। अब इसको कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, समझना है इसको हमें कि एक ट्रापीजियम दिया हुआ है जिसकी एक साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर की है और 20 सेंटीमीटर की। ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, जो उसकी पैरेलल साइड्स है वो 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर की है, और उसकी जो अपोजिट मतलब जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल हैं। नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है 13 सेंटीमीटर का। तो हमें कह रहा है अब एरिया फाइंड आउट करो, क्योंकि हमको इसमें हाइट दिया नहीं है, अब हमें हाइट खोजना है। तो हाइट खोजने के लिए हमको ये पता करना होगा, जैसे हमको यही ना पता करना है, ये हाइट हमको पता करनी है। तो अब इसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं हम, क्योंकि हाइट तो हर जगह इक्वल होगी पैरेलल साइड से, तो जहां तक पैरेलल होगी वहां तक इक्वल होगी। ठीक है, तो अब हम ये मान सकते हैं कि सबसे पहले हमको पहला स्टेप होगा हमारा कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में हमको क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन में ये करना होगा कंस्ट्रक्ट AE and BF परपेंडिकुलर ऑन, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर ऑन DC। अगर DC पे क्या हम ये AE और BF ये लाइनें हम परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर देते हैं तो एक सिंपल सी बात है कि AB जो होगा, यानी ये सीधा कर रहा है कि अब AE परपेंडिकुलर है और BF परपेंडिकुलर है, यानी ये अगर परपेंडिकुलर है, ये सब 90 डिग्री के बन रहे हैं। यहाँ ये देखते हैं ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस भी जो होगी, यानी AB जो होगा वो EF के इक्वल होगा। AB इज इक्वल टू EF। अब यहां हो गया, अब AB और EF अगर इक्वल होगा तो यानी कि ये AB जो है 10 सेंटीमीटर का, तो AB 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब देखें ये एक ट्राइंगल बच गया, तो अब इस ट्राइंगल को एक साथ बना दो, अगर एक साथ बना देते हो तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा ट्राइंगल, यानी ABC। ठीक है, B को हमने हटा दिया, B को भेज दिया अगर। ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये क्या है, ये दोनों लाइंस भी इक्वल होंगी, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, और ये जो लाइन आएगी वो इसको इक्वली डिवाइड करेगी, इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करेगी। मान लेते हैं इसका नाम हमने रख दिया E, चाहे F रख देते, कोई भी वो नहीं है। ठीक है, तो यानी कि DE जो होगा, ये DE जो होगा वो EF के, EC के FC के इक्वल होगा। यहाँ ये क्लियर कर दिया मैंने, क्योंकि ये इक्विलैटरल सॉरी आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में उसकी दो साइड्स आपस में बराबर होती है, दो एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, और जो उसका परपेंडिकुलर होता है उसके बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है कि DE इज इक्वल टू FC हो गया। ठीक है, तो यानी इन दोनों को हमने X और X मान लिया। तो अगर ये देखते हैं, हो गया DE प्लस EF प्लस FC इज इक्वल टू DC। इन तीनों को अगर ऐड कर दें तो ये DC आ जाएगा। अब DC हमारा कितना है, वो 20 सेंटीमीटर का है, और DE कितना है, X सेंटीमीटर है, और EF कितना है, 10 सेंटीमीटर है, FC कितना है, X सेंटीमीटर है। X और X ऐड होगा तो ये हो जाएगा 2X इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर हो गया, यानी X इज इक्वल टू हो गया 10/2, यानी कि ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब ईच साइड X की वैल्यू हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर। अब देखो ये कैसा ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें मिल गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल जैसे पिछले में मिला था वैसे ही एक यहाँ भी दिख रहा है। तो अब हम सेम फार्मूला हाइपोटेनस वाला लेकर के यूज कर सकते हैं, यानी यहाँ हो गया हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस इसमें क्या है, 90 डिग्री के सामने कौन सा है,
ये 13 सेंटीमीटर, यानी AD का स्क्वायर इज इक्वल टू एंगल बी का स्क्वायर यानी बेस का, यानी DE का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमें निकालना है तो P का स्क्वायर कर देंगे। चाहो तो तुम इधर से भी निकाल सकते हो, इधर का हाइपोटेनस हो जाएगा BC, इधर का बेस हो जाएगा FC और परपेंडिकुलर हो जाएगा BF। ठीक है, इसको आप निकाल सकते हैं, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर माइनस DE का स्क्वायर। ठीक है, तो AD का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई, AD की वैल्यू दी हुई है 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस, अब इसमें दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, तो हमने पिछले में ही किया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पैटर्न हम रखेंगे। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पैटर्न रखते हैं, तो एक ब्रैकेट में 13 प्लस 5, एक ब्रैकेट में 13 माइनस 5। अब p स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो 13 प्लस 5 18 हो गया, मल्टीप्लाई 13 माइनस 5 8 हो गया, तो ये हो गया 144 हो गया। P इज इक्वल टू रूट 144, 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है, 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब ये हमको परपेंडिकुलर मिल गया, परपेंडिकुलर हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर, तो अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इसका एरिया। तो अब हमारा फार्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम is equal to 1/2 multiplied with sum of parallel sides multiplied with height। ठीक है, तो अब देखो 1/2 पैरेलल साइड्स हमारी दी हुई है 10 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर, तो 2 से 12 कट गया, 2 6 जा 12, यहाँ आ गया 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड विथ 6, ये हो गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया, कॉपी कर लो। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 12, ये हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और थोड़ा इंटरेस्टिंग और टिपिकल भी है। तो आते हैं, अब ये दिया है कि एक ट्रेपेजियम है, मैंने इसकी नेमिंग कर दी ABCD। ठीक है, उसकी पैरेलल साइड जो है 11 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर दे दी, और अब कह रहा है कि उसकी नॉन पैरेलल साइड जो है 13 सेंटीमीटर एक 15 सेंटीमीटर, फाइंड आउट करो एरिया। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, अब देखो इसमें क्या है कि अगर ये परपेंडिकुलर हमको मिल जाए कहीं से, तो कहीं से क्या मिलेगा, अब तो खोजना पड़ेगा ना, तो ये मिल जाए तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या था, दोनों ये इक्वल था तो निकल गया, अब नया आ गया कि ये अनइक्वल है, अनइक्वल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एक और कंस्ट्रक्शन का काम करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन अगर करते हैं हम, तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ अ पैरेलल लाइन BE टू AD, BE इक्वल टू AD, तो यानी कि यहां पे हमको करना होगा कंस्ट्रक्ट अ पैरेलल लाइन BE पैरेलल टू AD and BE should be equal to AD। ठीक है, इसके पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। अब मान लेते हैं भाई 13 सेंटीमीटर AB आ गया। अब देखो अगर ये दोनों पैरेलल है तो सिंपल सी बात है कि ये AB और DE की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अगर BE is parallel to AD then AB is equal to DE। AB जो होगा DE के इक्वल होगा, यानी AB और DE बराबर मिला के कितना हो गया, ये 11 सेंटीमीटर। तो अब हमको ये ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें हम तीसरी साइड्स में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो EC हमें निकालना है, तो EC इज इक्वल टू, अब EC नहीं देखते हैं हमको DC देखते हैं। DC इज इक्वल टू DE प्लस EC। ठीक है ना, तो अब DE की वैल्यू तो हमको पता है 11 सेंटीमीटर है और DC की वैल्यू भी पता है कि वो 25 होगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, सॉरी
11 सेंटीमीटर प्लस EC, ठीक है। तो अब EC की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो इसको अपोजिट साइड भेज दो। EC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर माइनस 11 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये आ गया 14 सेंटीमीटर। अब देखो, अगर हम इसको दो पार्ट में देखते हैं तो दो पार्ट में एक तो ये पैरेललोग्राम मिल गया और दूसरा हमको ट्राइंगल मिल गया। भाई ठीक है, पहले हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। चलो, अब ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, हमको आसानी याद है। लेकिन एक और फार्मूला है जिसको हम हीरोन्स फार्मूला के नाम से जानते हैं। अब हीरोन्स फार्मूला कहता है कि हीरोन्स फार्मूला कब काम करता है? हीरोन्स फार्मूला काम करता है स्केलेन ट्राइंगल पे। स्केलेन ट्राइंगल हम लोग क्लास 7 में पढ़ चुके हैं कि 7 उसको हमने पढ़ा हुआ है। तो जब हम इसको देखेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस, तो पहला पार्ट है इसका एस इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि हमको सेमी पेरीमीटर निकालना होता है। अब सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद अगला स्टेप आता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब हमारे दिमाग में आता है ये एबीसी क्या है? एबीसी का मतलब है ये ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये हो गया एस इज इक्वल टू ए यानी कि 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2, तो ये हो गया 42 अपॉन 2। ये आ गया हमारा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 21 सेंटीमीटर अगर ये आ गया तो अब क्या करना है? इसको इस फॉर्म में रखना है, यानी कि अंडर रूट एस यानी कि 21 मल्टीप्लाई 21 माइनस 15, 21 माइनस 14, 21 माइनस 13। अब जरा माइनस कर दो, ये आ गया 21 मल्टीप्लाई 21 में से अगर 15 माइनस करेंगे 6 आएगा, इसका 7 आएगा, इसका 8 आएगा। अब थोड़ा एक्सपेंडेशन भी कर दो कि मतलब इसको कैसे बाहर निकालें। तो 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब जरा एक साथ वाले को एक साथ रख लो, ये हो गया 7 इंटू 7, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया, सबका पेयर बन गया। अब देख लो, आसान हो गया। 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42 एंड 42 2 जा 84। यह आ गया हमारा आंसर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये बात एक और चीज जान जाओ, थोड़ा सा कैमरे को टर्न कर देता हूँ कि आसान दिखे, सारी चीजें दिखे, ठीक है। अब एक और चीज मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ट्राइंगल का एरिया किसी भी फॉर्मूले से निकालो आएगा उतना ही, कोई चेंज नहीं आएगा उसमें। तो अब अगला स्टेप आता है, भाई ठीक है जब एक ही आता है तो इसका बेस इंटू हाइट वाला भी तो वही आएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट करेंगे तो भी हमारा 84 आना चाहिए। तो अब आते हैं यहाँ पे, यानी ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देख लो बेस क्या है, बेस यही EC है, ठीक है ना। EC इसका बेस होगा और हाइट इसकी ये मान लेते हैं कि ये G है, BG है, ठीक ना, BG हो गया ये, ठीक। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा निकला है 84 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यह गया 1/2, बेस दिया हुआ हमारा 14 सेंटीमीटर और हाइट हमें निकालनी है, यही निकल गया तो हमारा सब निकल जाएगा। यानी हाइट इज इक्वल टू 84। अब यहाँ से डिवाइड कर दो ना, 7 हो गया तो 7 यहाँ डिवाइड करेगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 आ गया 12 सेंटीमीटर। अब तो निकल जाएगा ना हमारा। अब इसका एरिया फाइंड आउट कर लो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला याद रख लो भाई। अब थोड़ा सा इसको नोट कर लो, उसके बाद मैं इरेज करके करता हूँ, ठीक। तो मैं यहाँ पर इस फिगर को मिटाता हूँ क्योंकि अब तुम्हारे दिमाग में फिगर बन गया होगा। अब देखो एरिया ऑफ, अब मैं ट्रेपीजियम बना दे रहा हूं यहाँ पे लिखने की जगह, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड विद हाइट। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स हमारी हमको क्या पता है 11 सेंटीमीटर है और 25 सेंटीमीटर है और ये आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 6 जा 12, अब ये 25 और इसको ऐड करेंगे 25 प्लस 36 हो गई, 36 इंटू 6 ये आ गया 216 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मतलब पहले कंस्ट्रक्शन किया
दूसरी बार में ये किया, मतलब फर्स्ट स्टेप हमारा ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, और ये फोर्थ और लास्ट है जिससे हमको एरिया मिल गया। ठीक है, अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और फॉलो करो। कंटिन्यू।